نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں. مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد میرے وصال کے بعد وہاں جانا کر تمہیں اویس ملے اسے میرا جبہ دینا. اب دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں. یہ بات شان کو کہاں سے کہاں لے گئی. محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے. اسے کہنا میری امت کی بخشش کی. حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے. جناب عمر کا رتبہ بھی. اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا. نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا, جبہ دے کے بھیجا. حضرت عمر گئے ملنے, جناب مولا علی گئے. جا کے پوچھا ممکن ہے کیا وہ دیوانے سے گھومتے رہتے ہیں. جب ملاقات ہوئی حضرت اویس کر کے دوڑے آئے. جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے. پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا. کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا. تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھا اور دادا صاحب حدیث لائے گئے. محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اب ایسے کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کر. اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا اعزاز. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی اور واپس لوٹے. یہ تو دادا صاحب کی بات ہے. اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی. ان کی زیارت کر لو. چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکتے تو زیارت کر لو. حضرت ویسے کرنے ان کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہیں؟ زیارت تو نہیں کی, داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں, کیونکہ سوال پوچھنے کا ان دونوں کا سوال ہے. یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں. باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں. میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے. کہا کتنے بال سفید تھے؟ یہ نہیں فرمایا مولا علی جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں. کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے ہیں. آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں. تو حضرت سے جملہ اب ایسے کرنے کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے. 17 بال سفید تھے. یہ ان کی زیارت کا حضرت ویسے کرنی نے ہمیں بتایا ہے کہ اطاعت صحیح کرنا تمہارا ذکر دربار رسول میں بھی ہوگا اور دربار خداوندی میں بھی ہوگا. حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا. ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملی. حضرت اویس کرنی یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا. یہ فکرہ پورا فیکٹری پہ آتا ہے. اسی کسی نے کچھ نہیں جلانا اور جناب ساڈا گھر کوئی جنانا نہیں, کوئی دوستانہ نہیں. حضرت ویسے کرنے کا مزار بھی کنفرم نہیں کی رہے. ہاں بس اسی کسی نے کچھ نہیں. کیا ضرورت, بس ٹھیک ہے اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا ہوا, علیحدہ اللہ کی چھلا. حضرت خواجہ ویس کرنے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے میں گیا کر گیا جو طرف بھی رہی. دادا صاحب نے اس کو لکھا ہے. فرماتے میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو آج کرنے چلے گئے. کہتے کہ میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا ویس کرنی آئے کہ کرنے لگے ہم تو نہیں جانتے. لیکن میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جانتے جاتے ہیں. اور اگر آپ قریب کے بندے تو چھوٹے ہوئے چکر میں پڑے ہی کون ویس کرتے. انہوں نے کہا کہ حضرت ویس کرتے چہرے پر برس کے داغ ہیں, کمزور سا وجود ہے, داڑھی زیادہ گھنی نہیں. تو حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا, اس نے طواف کیا تھا. پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں. وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھ رہا ہے.
कहा वो किधर गए? कहने लगे पूरा नहीं पता, इतना ज़रूर खबर है कि उनके अंदाज बताते थे कि अब मदीने जाएंगे। जनाब हरम बिन हयान कहते हैं कि मदीने गया, मैंने ख्वाजा अवैस को ढूंढा। मैंने कहा यार मैंने ख्वाजा अवैस करने को मिला है, किसी ने बताया है कि वो मदीना शरीफ आए। तो लोग कहने लगे अब नहीं जानते हो, लेकिन ना दुनिया जान गई, दुनिया में बड़ा कुछ हो गया। बाई नेम लोग जानने लगे, होटलों पे पहचानने लगे, सड़कों पे पहचानने लगे। लेकिन बात तो ये है कि जिनको पहचानने लगे, अगर वो पहचान लें फिर तो बड़ी बात है, फिर तो बड़ी बात। लेकिन अगर वहाँ की पहचान ना हो सके फिर तो मामला बड़ा अलग सा है ना। अजीज भाई, हज़रत ख्वाजा अवैस करने के बारे में पूछा तो मदीना शरीफ के ज़ाहिरीन और वहाँ के मकामी लोग भी कहने लगे कोई नहीं करता, हम नहीं जानते, मिले ही नहीं। बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास, पर्स का दाग, चेहरे पे दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं उठाते। फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती है पलकें, सुना है कि पलकें भीगी रहती हैं। मैं 2-4 दिन पहले किसी से सुन रहा था शेर, उसने कहा था एक बारी चस्का पै गया हर वेले याद बताई। कहते हैं वो इस तरह की उसकी कैफियत है। कहते मैंने कहा यार कोई तो अवैस करनी थी, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं। जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही नहीं लगा था, सिस्कियाँ और आहें निकल गई उस शख्स की जब वो मदीने आया। हज़रत हरम बिन हयान कहते मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक में आया तो नहर फुरात के किनारे एक कमज़ोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वज़ू करते देखा। कहते जब उनका वज़ू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालेकुम सलाम या हरम बिन हयान, या हरम बिन हयान वालेकुम सलाम। कहते मैंने कहा कि मन अंता कौन है? कहने लगे वही हो जिसे तुम मक्के और मदीने ढूंढता रहा। तो कहते मैंने कहा हुज़ूर आप मेरा नाम कैसे जानते हो? बड़ा खुश हुआ, अल्लाह करे आपको सबक कभी ना हो, सबक कभी ना हो। बाबा साहब के मज़ार में गए तो खाली आ गए, दादा साहब गए तो खाली ऐसे चले गए। फारिग लोग थे, कोई काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे। हम फारिग थे कि 2-2 बजे हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। हम तो पत्थर चाटने वाले लोग थे कि आधी आधी रात बीत गई और हम बुजुर्गान कलमा वाला शरीफ खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आज़म के मज़ार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हज़रत वैसी करनी बोल कर फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूँ? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है, आरिफ तू रूही में रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये रूहों का रिश्ता है, खता नहीं जाया करता। आरिफ तू रूही में रूही का, मेरी रूह तेरी रूह को जानती है। ये कैसे हो गया? वो ऐसे लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानूँ ना, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन? तू ढूंढता रहा गली गली और मैं कहूँ कि मैं तुझे जानता नहीं। फिर मैं हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि रब करीब मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। कहते जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुज़ूर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे मेरा पीछा न करिए, मैं किसी और मंज़िल का मुसाफिर हूँ और जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ उन मंजिलों के साथ ही किसी को ये मेरी अपनी साथी मंजिल है। इसके पाँव पे छाले मेरा सख्त हर आदमी का काम नहीं यहाँ चलना, तो मुझे तन्हा रहने दे, मुझे अपनी मर्जी से चलने दे। कहते मैंने मिन्नत की तो कहने लगे बस, और जद्दोजहद बड़ी की थी तो तेरे साथ मुलाकात कर दी, तुझे पहचान लिया, तेरे साथ बात कर दी, वरना मैं कह चुका हूँ किसी किसे दे कुछ नहीं लगते। इसलिए मैंने गालिबा इमाम शुरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब हज़रत वैसे करती जन्नत में जाएंगे तो मुमकिन है उस वक़्त भी लोगों को दीदार न कराएंगे, बल्कि इमाम शुरानी कहते हैं अल्लाह 70,000 फरिश्ते उनकी शक्ल के पैदा करवाएगा और उनके झूमट के अंदर छुपा के उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। मुलाकात किससे होगी? सिर्फ उन्हीं से होगी जिनके लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। या खुदा से मिलोगे या मुस्तफ़ा करीम से मिलोगे।
अच्छे नहीं होते, बुरे लोग भी में होते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 लोगों को लेकर के अच्छों की मोहब्बत छोड़ देंगे, नेक लोगों का जिक्र छोड़ देंगे, उनका प्यार छोड़ देंगे, उनका तस्करा पढ़ना छोड़ देंगे, उनके पास बैठना छोड़ देंगे। गुज़श्ता दौर में जो बादशाह भी नेक हुए ना, वो भी सालिहीन की मोहब्बत की वजह से नेक हुए। औरंगज़ेब आलमगीर अगर कुछ बेहतर हुए तो इसलिए कि मुल्ला जीवन नेक आदमी से मोहब्बत करते थे। महमूद गज़नवी की बेहतरी का सबब ये था कि हज़रत सैयदना अली हसन करदानी के पास जाया करते। सालिहीन की मोहब्बत ने बादशाहों के रुख बदले, बादशाहों इन लोगों को प्यार था। महाराज जहांगीर बादशाह जाया करता था ख्वाजा अजमेर के आस्थाने पर। लोग कहते हैं कि बड़े सख्त दिनों में भी हम उसकी आंखों में आंसू देखा करते, दर्द वाली जगह पर जाते थे तो दर्द मंद। इसलिए इस सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़ो, कभी ना छोड़ो। मेरे भाई कपड़ों में मिट्टी पड़ जाए ना, कपड़े धोए जाते हैं, उतार के पहन के नहीं जाती। चीज़ें गलत हो जाए तो गर्द झाड़ी जाती है। उस निज़ाम को छोड़ा, सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़ो, कभी ना छोड़ो। रब करीम के बंदों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के करीब करेगी। अल्लाह के बंदों की मोहब्बत आपके अंदर जलवे पैदा करेगी। और अगर आप उनको पढ़ेंगे, मैं जब बाग तशरीफ जाता हूँ या किसी मज़ार पर मैं खड़ा होता हूँ तो वो जो हालात पड़े होते हैं उन बुजुर्गों के वो सामने आते हैं कि यहाँ ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूबी लाई तशरीफ लाए। लेकिन अगर कोई बंदा सोचे तो हो सकता है कि उसका कलेजा फटने को आए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब कहते हैं कि जो बाबे जन्नत है ना, बाबा फरीद साहब का, कहते हैं ऐसी बाबे जन्नत नहीं फरमाते। जब बाबा साहब का विसाल हुआ तो बाबा साहब वहीं लेटे हुए थे जहाँ आज उनकी मज़ार है, और उनके सराहने बिल्कुल इस जगह को लोग बाबे जन्नत कहते हैं। कहते हैं वहाँ मैंने रसूल पाक को खड़े को देखा है। अब कोई आदमी हुजूर की खुशबू महसूस, उसका एक इरादा बन गया ना कि यहाँ हुजूर खड़े थे, उस पर कैफियत क्या तारीफ, उस पर अंदाज क्या हो, उस पर बादल क्या हो, वो कहाँ पहुँच जाएगा 1-2 मिनट के अंदर। ये तो उस वक्त है जब उसके महसूसात होंगे, जब वो नज़रियाती तौर पर इस बात से मुत्तफिक होगा, जब वो खुशबू महसूस करने की सलाहियत रखता होगा। एक बात नजराए मोहब्बत है, कह देता हूँ, क्योंकि सवालात होते रहते, कह देता हूँ। आला हज़रत के एक मुरीद थे मौलाना हशमत अली, बड़े तगड़े आदमी, जिन लोगों की पोजीशन बड़ी सख्त फाजिल लोग होते हैं ना, और हाजिर जवाब 1 मिनट से पहले पाक पतन शरीफ गए, वो बाब जन्नत से गुजर के आए। बाब जन्नत से किसी हमारे आलिम ने नहीं लिखा कि जो वहाँ से गुजर गया आप तौबा ना करें, अब कोई अच्छा अमल न करे तो जन्नत में जाएगा। बस ये कहा कि एक दरवाज़ा है जहाँ ख्वाजा निज़ाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खड़े देखा, गुजर जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए एक बरकत है। लेकिन किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि अब वहाँ से निकल के आ जाए और माज़अल्लाह झूठ बोले, जो मर्जी करे कि मैं जन्नती हो गया। ये माना किसी बंदे ने भी बयान नहीं किया। हाँ, वहाँ से गुजर के आए, सच्ची तौबा करे, बात अपने अमाल पे मेहनत करे, अल्लाह उसकी उसे बरकत अदा करेगा। फरमाते मैं पाक पतन शरीफ से होके आया, रश पड़ा था, उसके अय्याम थे, तो बाब जन्नत से गुजर के आया तो मैं बस की छत पे बैठ गया। कुछ और लोग भी थे, तो उनमें से कुछ ऐसे साहिबान भी थे जिनकी बीमारी होती है छेड़ करके, कोई ना कोई बात किए रहते, ये हो गया तो वो हो गया, कहते उन्होंने बात छेड़ी। मौलाना कहाँ से आए? मैंने कहा पाक पतन शरीफ। कहने लगे कि आप बहिश्ती दरवाज़ा जिसको कहते हैं बाब जन्नत, वहाँ से भी गुजरे? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लाइन तो बड़ी लंबी थी पर मौका मिल ही गया, गुजर गया। तो कहता मुझे सूर मिला। मैंने लगा फिर तो आप जन्नती हो गए होंगे, पर आपके पास से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। तंजिया उन्होंने तंजिया, तो उन्होंने तंज किया, मुझे भी हक हासिल था, जवाबदार जवाब की तो इजाज़त होनी चाहिए ना। मैंने कहा मौलाना क्यों आप सुन रहे हैं? कहने लगे मैंने इस बात में पढ़ा है कि जन्नती 500 साल भी दूर होगा तो उसके पास से खुशबू आएगी, यानी 500 साल लगेंगे दूर तक तो फिर भी जन्नत की खुशबू आएगी, तो आपसे तो कोई नहीं आ रही। कहते मैंने उनसे कहा आपने एक हदीस पढ़ी, अगली नहीं पढ़ लेनी थी। हुजूर ने फरमाया जहन्नमी को जन्नत की खुशबू कोई नहीं आएगी। ये नहीं पढ़ी आपने हदीस, ये ही नज़र से गुजरी। तो कहते हैं वो मौलाना मुझसे माजरत करने लगे, कहने लगे यार आप तो नाराज़ ही हो गए। तो मैंने कहा भी आप